Good morning students, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Students, today we are going to start our new chapter of English Reader. It is chapter 2nd, Along the Yellow Brick Road. But before starting this beautiful story, here are some hard words on the board, so you are to speak after me. Okay? Storm, adventures, thoughtfully, troublesome, groan, discord, axe, exclaimed, rusted, immediately, act, politely, cheerfully, marching. Students, we have read the hard words related to this chapter. I hope you are ready with your books. So please open chapter 2nd. Open page number 18. This piece is taken from the book The Wonderful Wizard of Oz. ये पीस कौन सी बुक से लिया गया है? द वंडरफुल विजर्ड ऑफ ओज, विच इज रिटन बाय एल फ्रैंक बूम, जो कि एल फ्रैंक बूम ने लिखी है. इट इज अ स्टोरी अबाउट अ यंग गर्ल कॉल्ड डोरेथी. ये एक छोटी बच्ची की कहानी है और उसका नेम था डोरेथी. Who is carried away by a storm to the magical land of Oz, जो कि तूफान में उड़कर मैजिकल लैंड ऑफ ओज आ गई थी. There she has many adventures on her journey down the yellow brick road. और उसकी जर्नी येलो ब्रिक रोड में उसे बहुत सारे एडवेंचर्स देखने को मिलते हैं. Along the way, she meets some strange new friends. और रास्ते में उसे कुछ नए और स्ट्रेंज फ्रेंड्स मिलते हैं. Among them are a talking scarecrow. Scarecrow means it is a very simple model of man which is put in the fields to frighten away animals and birds. And a tin man, a man which is made by tin. One sunny morning, एक sunny morning, Dorothy and Scarecrow came by a beautiful clear water spring. Dorothy और Scarecrow एक साफ झरने के पास आते हैं. Dorothy bathed, drank and ate a light breakfast there while Scarecrow looked on thoughtfully. वहाँ Dorothy नहाती है, लाइट ब्रेकफास्ट लेती है, जबकि जो Scarecrow था वो उसे thoughtfully देख रहा होता है. Watching her, he said, "It must be troublesome to made of flesh." कि कितनी मुश्किल की बात है मांस से बने होना. You must always worry about where to sleep, eat and drink. कि तुम्हें हमेशा यही चिंता लगी रहती होगी कि कहाँ सोना है, क्या खाना है और क्या पीना है. However, you also have brains. हालांकि तुम्हारे पास ब्रेन्स होते हैं. And it must be wonderful, और ये बहुत अच्छा रहता है to be able to think properly. किसी चीज को प्रॉपरली सोचने समझने के लिए ये जो ब्रेन्स होते हैं वो बहुत वंडरफुल होते हैं. Dorothy smiled and was about to reply. Dorothy स्माइल करती है और उसको रिप्लाई करने वाली होती है. When suddenly he heard a deep groan from somewhere nearby. तभी उसे एक ग्रोनिंग साउंड सुनाई देता है. A long deep sound made because of pain. That is called groaning sound. तभी उसे एक groaning sound सुनाई देता है. What was that? कि वो क्या था? She asked surprised. वो सरप्राइज होते हुए पूछती है कि वो क्या था, जो साउंड हमने अभी सुना वो क्या था. I don't know. मैं नहीं जानता. But we can go and see. लेकिन हम चल सकते हैं और देख सकते हैं. Said Scarecrow. Scarecrow बोलता है. Soon they heard another groan. उसके बाद फिर से उन्हें दोबारा वही साउंड सुनाई देता है. The sound seems to come from behind. कि ये साउंड ऐसा लग रहा है जैसे कि पीछे से आ रहा हो. They walked towards the forest and suddenly discovered something shining in the sunlight between the trees. और जल्दी ही वो उस चीज को ढूंढ लेते हैं जो कि सनलाइट में चमक रही थी और ट्रीज के बीच में थी. They came closer to the spot. और अब वो उस जगह पर आ जाते हैं. And found it was a man made entirely of tin with an axe in his hand. और जल्दी ही उस आदमी को फाइंड कर लेते हैं जो कि पूरा टिन से बना हुआ था और उसके हाथ में एक एक्स थी, कुल्हाड़ी थी. His head, arms and legs were fitted to the body. और उसके हेड, आर्म्स और लेग उसकी बॉडी से फिट थे. But he stood as he could not stir at all.
वो ऐसे खड़ा हो रहा था जैसे कि वो हिल भी नहीं पा रहा हो। डोरेथी एंड स्केयरक्रो लुक्ड एट हिम अमेज्ड। डोरेथी और स्केयरक्रो सरप्राइज होते हुए उसकी तरफ देखते हैं। सो इट वॉज यू हु वॉज ग्रोनिंग। तो वो तुम थे जो करहा रहे थे। एक्सक्लेम डोरेथी। डोरेथी कहती है यस क्राइड टिन मैन। टिन मैन चिल्लाकर कहता है आई हैव बीन ग्रोनिंग फॉर मोर देन अ ईयर नाउ, कि मुझे करहाते हुए 1 ईयर से भी ज्यादा हो गया है। बट नो वन हैज हर्ड मी और कम टू माई हेल्प, कि लेकिन किसी ने मेरा साउंड नहीं सुना और कोई भी मेरे पास मेरी हेल्प के लिए नहीं आया। What can I do for you? डोरेथी asked softly. मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? डोरेथी उसे बहुत सॉफ्टली पूछती है। For she was moved by his sad voice, क्योंकि उसके सैड वॉइस पर उसको दया आ गई थी। You could get an oil can and oil my joints, answered Tin Man. Tin Man उसे बोलता है कि तुम कहीं से ऑयल कैन ले आओ और मेरे जॉइंट्स में ऑयलिंग कर दो। दे आर रस्टेड बैडली, कि उनमें बुरी तरीके से जंग लग गया है। आई कांट मूव दैम एट ऑल, कि मैं इन्हें हिला भी नहीं पा रहा हूँ। इफ आई एम वेल ऑयल्ड, अगर मैं वेल ऑयल्ड होऊंगा, अगर मेरे जॉइंट्स में प्रॉपरली ऑयलिंग होगी, आई शैल बी ऑल राइट अगेन, तो मैं फिर से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। He pointed to a hut at the edge of the forest. अब वो एक हट की तरफ इशारा करता है जो कि फॉरेस्ट के एज पर थी एंड एडेड, और कहता है You will find an oil can on my cottage shelf, कि तुम्हें वो ऑयल कैन मेरी कॉटेज शेल्फ से मिल जाएगी। डोरेथी rushed off immediately. डोरेथी भाग कर जाती है एंड रिटर्न शॉर्टली विद द कैन, और कैन के साथ वापस आती है। She then asked where should I start, कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। Good morning students, welcome to our class again. As you know, in our previous class we have started chapter 2 along the yellow brick road, and today we are going to complete this chapter. But before starting our remaining chapter, here are some word meanings related to this chapter. So you are to listen to me very carefully. Shall we start? Spring, a pool created by fresh running water. Thoughtfully, thinking carefully and quietly. Troublesome, something that causes worry. Groan, a long, deep sound made because of pain. Discover, found something suddenly or by chance. Start, move. Now move on to next word meanings. Next is cars moved by, felt pity for. Joints, parts of the body that help us move or bend. Rusted, jung lagna, damaged by a reddish brown substance formed by the effect of air and water on matter. Next is gave a sigh of relief, suddenly felt happy when the suffering ends. Next is gave a sigh of relief, suddenly felt happy when the suffering ended. Grateful, being thankful for someone's help. Party, group. Now we have read the word meanings related to this chapter. I hope you are ready with your books. So please open page number 19. Students, as we have read in our previous class, this story is about a young girl Dorothy. एक छोटी बच्ची की कहानी है, उसका नाम डोरेथी था और वो स्टॉर्म से मैजिकल लैंड ऑफ ओज उड़कर चली जाती है। वहां उसे 2 स्ट्रेंज फ्रेंड्स मिलते हैं, एक स्केयरक्रो एंड सेकंड टिन मैन। टिन मैन उसको ग्रोनिंग साउंड करता हुआ मिलता है, दर्द से करहाता हुआ मिलता है। आफ्टर दैट डोरेथी आस्क्ड हाउ कैन आई हेल्प यू, देन टिन मैन रिप्लाइड प्लीज कुड यू ऑयल माय जॉइंट्स, कि क्या तुम मेरे जॉइंट्स में ऑयलिंग कर सकती हो। आफ्टर दैट वो ऑयल कैन लाती है एंड स्टार्ट ऑयलिंग द जॉइंट्स ऑफ टिन मैन। नाउ लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग चैप्टर। ऑयल माय नेक फर्स्ट, सेड टिन मैन।
टिन मैन कहता है कि सबसे पहले ऑयलिंग मेरी नेक में करो। As Dorothy began oiling it, और जैसे ही डोरेथी ऑयलिंग करने लगती है, Scarecrow had his tin hat, Scarecrow उसके टिन हैट को अच्छे से होल्ड कर लेता है एंड मूव्ड इट जेंटली फ्रॉम साइड टू साइड, और बिल्कुल आराम से जेंटली साइड टू साइड मूव करता है टिल इट वर्क फ्रीली, जब तक वो फ्रीली वर्क नहीं करने लग जाता उसका हेड, तब तक स्केयरक्रो जेंटली उसके हेड को मूव करवाता रहता है। टिन मैन नाउ गेव अ साई ऑफ रिलीफ, अब टिन मैन एक चैन की सांस लेता है। दिस इज ग्रेट कंफर्ट, की बहुत आराम मिल रहा है। ही सेड, उसने कहा, आफ्टर दिस इफ यू ऑयल माई जॉइंट्स ऑफ माई लेग आई शैल बी एबल टू वॉक अगेन, अगर आप मेरे लेग के जॉइंट्स में ऑयलिंग करते हो तो मैं प्रॉपरली वॉक करने लायक हो जाऊंगा। सो डोरेथी एंड स्केयरक्रो ऑयल्ड हिज लेग टिल दे मूव इजीली, और डोरेथी एंड स्केयरक्रो उसके लेग्स में तब तक ऑयलिंग करते रहते हैं जब वो इजीली मूव करने लायक नहीं हो जाते। टिन मैन फेल्ट ग्रेटफुल, अब वो बहुत ग्रेटफुल होता है एंड पोलाइटली थैंक देम फॉर देयर हेल्प, और उन दोनों को उनकी हेल्प के लिए पोलाइटली थैंक यू बोलता है। आई माइट हैव स्टूड हियर फॉरएवर इफ यू हैडंट कम अलोंग, ही सेड, वो कहता है कि अगर आप लोग नहीं आते मेरी हेल्प के लिए तो हो सकता है कि मैं यहीं पर ही हमेशा के लिए खड़ा रहता। सो यू सर्टेनली हैव सेव्ड माई लाइफ, कि तुम लोगों ने मेरी लाइफ को बचा लिया है। हाउ डिड यू हैपन टू बी हियर, कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए हो, किस रीजन से तुम लोग यहाँ आए हो। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 20। डोरेथी रिप्लाइड, डोरेथी रिप्लाई करती है, वी आर ऑन आवर वे टू एमरल्ड सिटी टू सी द ग्रेट ओज, कि हम जो है रास्ते में हैं एमरल्ड सिटी के, और हम कहाँ जा रहे हैं, ग्रेट ओज को देखने जा रहे हैं। द येलो ब्रिक रोड लेड अस टू दिस प्लेस, और येलो ब्रिक रोड जो है वो हमें लीड कर रही है उस प्लेस तक जाने के लिए। Why do you wish to see Oz? asked Tin Man, और टिन मैन पूछता है कि तुम लोग जो है ना ओज को क्यों देखना चाहते हो। I want him to send me back to Kansas, कि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे कैंसास मेरे विलेज वापस भेज दे। And the scarecrow wants Oz to give him some brains, she said, और वो कहती है कि स्केयरक्रो जो है ये ओज से गिफ्ट में थोड़ा सा ब्रेन चाहता है। That's why he is going to Oz with me. Tin Man thought for a few moments and said, अब टिन मैन थोड़ी सी देर के लिए सोचता है और कहता है कि डू यू सपोज ओज could give me a heart, कि क्या तुम्हें लगता है कि ओज मुझे एक हार्ट दे सकता है। I guess so, answered Dorothy, कि मुझे लगता है कि हाँ दे सकता है। Answer Dorothy, Dorothy आंसर देती है, It would be as easy as to give the scarecrow brains, कि ये मुझे उतना ही इजी लगता है जितना स्केयरक्रो को ब्रेन देना। अगर वो स्केयरक्रो को ब्रेन दे सकता है तो वो तुम्हें भी एक हार्ट जरूर दे सकता है। ओके, ट्रू सैड टिन मैन, कि हाँ तुम सही कह रही हो। कौन कहता है? टिन मैन। इफ यू विल अलाउ मी टू ज्वाइन योर पार्टी आई विल गो टू एमरल्ड सिटी एंड आस्क ओज फॉर माई विश, अगर तुम मुझे अलाउ कर दो कि मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर लूं तो मैं भी एमरल्ड सिटी चल सकता हूं अपने विश को फुलफिल करवाने के लिए। कम अलोंग, साथ चलो, सैड डोरेथी एंड स्केयरक्रो चीयरफुली, स्केयरक्रो और डोरेथी चीयरफुली खुशी से कहते हैं कि हाँ हमारे साथ चलो। एंड विद दैट द थ्री स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स द एमरल्ड सिटी, और उसके बाद वो तीनों अपनी जर्नी को एमरल्ड सिटी के लिए स्टार्ट कर देते हैं। So students, now this chapter has been completed. I hope you like it. Now you are to complete these word meanings and question answers in your English Reader notebook.